Good evening to all the learned members present here. Can we utilize our time till the time FM is coming? May I request all the members to take their seat? See, I'm here, Stepney. I'm being asked that whatever GST changes has come in Union Budget 2022, important changes from GST perspective. So my only request to all of you would be, kindly take your seat. From the back also, may I request to take your seat? Dr. Mahesh Gupta wanted me, Bimal, utilize this time that you let us know what all changes has come into GST law. So let me take this time and explain what all important changes is being announced in Union Budget 2022. In GST, input tax credit is the sole, but day by day, what we are finding, ITC provisions are getting restricted for number of regions. And this year budget is also not an exception. Let me tell you, for availing ITC, Rajiv sir, you have to give me your time. I'm taking your time only. If I'm requesting someone to keep their mobile away for 5, 10, 20 minutes, maybe it is going to help you for your understanding for getting ITC, which is important in GST law. But what all condition exist and what is the restriction that is being announced in Union Budget 2022? Are we all ready? We can enjoy like, we are talking like a closed team here. Are we ready? All right. For availing ITC, sir, in GST, there were 4 conditions initially. And let's assume I'm a supplier and you all are my buyer, recipient. For getting credit, you first need to have tax invoice copy with yourself. Second, you must have received goods or services. Third, your supplier must have paid taxes. And here, but the burning topic, pan-India age, you as a company has paid the amount to the supplier and supplier has not deposited. And you must be struggling. Since your supplier has not paid the taxes, credit is being denied for the buyer. Pan-India. And last condition, you as a recipient regularly filing GST return. And then I will take you to the last year budget, Union Budget 2021. 5th condition got introduced, sir. And 5th condition is saying that credit which you are taking must be auto-populated in GSTR 2B, last year budget, made effective from 1st of January 2022. Now this year budget, they have said, Bimal, everything is okay. Credit coming in 2B, but still you can't take credit if you are falling into 6 restriction. Just think of, as a good and simple tax, this would have been whatever I pay on purchase, credit should be available. But that is not the case. Having 5 condition under section 16, subsection 2, now there are restrictions, 6 restrictions. You have to check if you're falling in any of the restriction, credit is not available. Sir, what are those restrictions? Restriction number 1. If you're taking new registration, government may specify a period for which credit is not available. Just think on. If you're taking new registration, they may specify some period for which credit is not available. Even though you have paid the amount, you're having tax invoice, receive goods and services, but still they will not give you the credit. Second condition, if you are defaulting in payment of tax and your default continues for certain specified period, and default may happen when we are talking about MSME sector, I have raised my invoice. I'm not being paid by my customer.
So I'm defaulting. I'm not able to pay the amount, GST amount, because I have not collected money from my customer. But they're saying, Bimal, if you default in payment of tax and that continues for a specified period, then you may not be able to take credit. And another point which is important here, if you delay in payment of GST, rate of interest is, anyone? 18%. Can you think of? First of all, I'm not being received. I have not received the money from my customer. If I delay in payment of GST, 18% rate of interest. Take a parity issue. Sometimes we are claiming refund, asking refund from the department. First, we don't get refund, sir. You are so optimistic guy. Gopalji is saying 6%. I'm saying, let me get my refund back from the department. And then the rate of interest is 6%, no parity. Coming to the third condition, and listen very carefully. You all are at the managing level, so you might not be devoting your time, but these are the restrictions now. If you're showing your output tax in GSTR1, let's say 1 lakh rupees, and paying your tax on 50,000 rupees. So there's difference in output tax in GSTR1 versus GSTR3B, that may be a region you will not be able to get credit. Third condition. Fourth condition, you are availing credit in 3B, let's say 1 lakh, but your 2B is saying only 50,000, and that crosses specified limit, you will not be able to get credit even though auto-populated in your GSTR 2B. And this condition, listen very carefully. We got e-cash ledger and e-credit ledger. We can use our e-credit ledger for discharging output tax. If I tell you, Gopal sir, you will not be able to use your e-credit ledger fully 100%. Will you be agreeing for that? You will not be. For your information, there was Rule 86B last year, 1st January 2021, and they have made the provision that you can use your e-credit ledger only to the extent of 99%, meaning thereby compulsorily you have to pay in cash 1%. And they have made provision this time. आपका e-credit ledger होगा, पर आप पूरा यूज नहीं कर पाएंगे. And government will say कि बिमल कल से 98%, कल से 97%. Sir, we have to be very much ready. And last condition, specified class of person, they may say they are not entitled to avail credit. So what is coming out in crystal clear terms? Credit लेना है तो पहले 5 condition satisfy कीजिए. कौन कौन सी? आपके पास invoice कॉपी होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिसीव कर लिए हो, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो. प्रॉब्लम यह है, सप्लायर ने मुझसे तो ले लिया लेकिन आगे उसने जमा नहीं कराया, आपकी क्रेडिट डिनाई हो जाएगी. चौथा, आप रेगुलरली एज ए कंपनी रिसिपिएंट यू आर रेगुलरली फाइलिंग जीएसटी रिटर्न. और 5वां कंडीशन ने क्या कहा, बिमल 2B में क्रेडिट आ रही है, मिलेगी, पर तू वो रिस्ट्रिक्शन चेक कर ले. 6 रेस्ट्रिक्शन. तो आप सोचिए कितना ईज ऑफ बिजनेस. गुड एंड सिंपल टैक्स है ना, गुड एंड सिंपल टैक्स. सॉरी, quote unquote, I'm not here for the press and media, I'm here only for internal discussion. I should not be quoted from PSD, CCI, but these are the provision which is being proposed in Union Budget 2022. और फिर आपको 6 restriction देखनी है. तो मुझे लगता है सर, GST law is getting complicated day by day. सर एक विचार आया था मेरे मन में, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता जी भी हैं, आप लोग भी हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, being close we are discussing, अगर GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे देना ही नहीं चाहते, जो मुझे मिल ही नहीं रहा, बेटर आप GST के रेट कम कर दो, लोअर साइड पे ले जाओ, ITC मत दो, खत्म करो ITC को. आया इसलिए था कि वैल्यू एडिशन,
Every step of supply chain there would be value addition, I will get the credit. But credit आप इतने condition और restriction के साथ रखेंगे तो मुझे तो credit ultimately मिल ही नहीं रही है. बेटर आप जीएसटी के रेट कम कर दो, 18 वाले को 5 पे ले आओ. I'm just giving food for thought. It is not my official comment. I'm giving. मैंने एक अपने ट्विटर अकाउंट पे पोल किया था, राजीव सर. मेरे ट्विटर अकाउंट पे मैंने एक पोल डाला था इसी पॉइंट पे कि लोगों की क्या राय है. I got 900 vote on my Twitter account. और 900 में 91% लोगों ने कहा जीएसटी के रेट कम कर दो, आईटीसी तो हमें देना ही नहीं चाहते. इट इज नॉट माई व्यू. आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे पब्लिक डोमेन पे है, जाके चेक दैट पोल. सर, इट इज नॉट गिविंग ईज ऑफ बिजनेस. कमिंग टू द गुड पॉइंट, कई बार होता है ना कि बिमल क्रिटिक्स हो रहा है. कुछ अच्छे पॉइंट भी आपको बताता हूं. अच्छा पॉइंट ये है सर, मेरे 4 रजिस्ट्रेशन है. आई गॉट 4 रजिस्ट्रेशन, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एज्यूम, under same PAN number. So we are distinct person under same PAN number. कई बार होता है कि दिल्ली के e-cash ledger में मैंने पैसा जमा करा दिया. I deposited some money in my e-cash ledger of Delhi. पर दिल्ली में liability नहीं है. बट मेरी liability है अदर स्टेट में जहां मुझे जमा करना है टैक्स. तो क्वेश्चन ये था, दिल्ली में जो जमा हुआ पैसा है क्या उससे मैं पंजाब की liability पे कर दूं? अब तक नहीं था, बट अब इनने कह दिया, फॉर्चुनेटली कह दिया कि बिमल अगर आपका आईजीएसटी और सीजीएसटी में जमा है दिल्ली में तो आप इसे पंजाब में ट्रांसफर कर सकते हो. यानी आपको अलग से पंजाब में जमा कराने की जरूरत नहीं है. तो दिल्ली से आपको रिफंड नहीं लेना और पंजाब में जमा नहीं कराना. रियल ईज ऑफ बिजनेस. डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? सेकंड चेंज. थर्ड चेंज. हाँ सर, सर ई कैश लेजर में आप जमा करते हैं. हाँ, तो ई कैश लेजर में पड़ा है, ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं. यस करेक्ट, बोथ वे, बोथ वे. सर गोपाल जी ने मुझसे पूछा, बिमल लिसन केयरफुली सर, गोपाल जी ने मुझसे पूछा, बिमल मेरे ई कैश लेजर में 2 बैलेंस आते हैं, एक जो मैं जमा कराता हूं और एक जो टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं. आप सप्लायर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जरिए सप्लाई करते हैं तो टीसीएस काटता है, वो भी आपके ई कैश लेजर में आता है. दोनों का बैलेंस आता है. तो क्या दोनों का बैलेंस में ट्रांसफर कर दूं दिल्ली से पंजाब? यस, आंसर इज यस, एंड से गुड प्रोविजन. एक और गुड प्रोविजन बताऊं आपको. सर कई बार क्या होता है, हम गलत क्रेडिट ले लेते हैं, रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट. हो जाता है ना कि अकाउंटेंट को नहीं मालूम था और क्रेडिट मुझे मिलनी नहीं थी, फिर भी उसने क्रेडिट ले ली. अब गलत क्रेडिट लिया है तो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, एम आई राइट? तो आपके सामने 2 सिचुएशन देता हूं. रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट बट नॉट यूटिलाइज्ड, एंड रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट एंड यूटिलाइज्ड. तो हम पास्ट प्री जीएसटी में इस बात को डिस्कस करते थे कि सर मैंने क्रेडिट गलत ले ली और यूटिलाइज नहीं किया, दैट इज एज गुड एज मैंने क्रेडिट नहीं ली, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. इंटरेस्ट, फॉर्चुनेट पार्ट, विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट from July 1, 2017, they have said no interest for reversal of wrongly availed credit, but not utilized. Another good part they have done, they have rationalized the interest rate from 24% to 18%. पहले 24% था इसके ऊपर, जिसको इनने कर दिया 18%. Good part of it. Am I clear to all of you? Coming to the 4th change. हम लोग ये यूटिलाइज कर ले रहे, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मौका मिल गया. कम से कम मुझे लगा यहाँ आने से ये तो फायदा हो गया, मैंने कुछ जीएसटी के बारे में बता दिया आपको. चौथा अच्छा चेंज, सर हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं जीएसटी में. अभी अशोक सर बात कर रहे थे, बिमल वो इन डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने बताया कोई प्रोमोशनल आइटम हम देते हैं तो उस 10% का प्रोविजन डाला है.
जीएसटी में मैं एक आपको अच्छी चीज बताऊं, मैं कंपनी हूं, मैं अपने सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर को कई प्रमोशनल आइटम देता हूं. एंड व्हाई आई एम गिविंग प्रमोशनल आइटम? टू बूस्ट माई सेल, टू इंक्रीज माई सेल. Objective is to increase my sell. It is not free gift. I'm just trying to get my sales boost up in the course of furtherance of business. Am I right? Yes. Question comes, let's say you are purchasing gold coin and giving to your distributor and dealer. First and foremost, जो जीएसटी आपने गोल्ड कॉइन पे दिया, उसकी क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? डिपार्टमेंट बोलता है ये तो गिफ्ट है, और हम कहते हैं गिफ्ट है ही नहीं है. मैं बाजार में सबको थोड़ी बांट रहा हूं. आई एम ओनली गिविंग टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर ओनली ऑन अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो क्रेडिट नोट का एक कॉन्सेप्ट है. क्रेडिट नोट व्हेन इट इज बीइंग गिवन, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आप देते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को. एक टाइम लिमिट है जीएसटी के अंदर कि क्रेडिट नोट जो आप देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को, उसके लिए टाइम लिमिट थी. That was September of next financial year. उनने इसको बढ़ा के कर दिया 30th November of next financial year. पहला गुड पार्ट. लेकिन इसमें आपको एक मैं ओपिनियन देने वाला हूं, फ्री ओपिनियन. क्रेडिट नोट दो तरह के होते हैं. एक जीएसटी वाला क्रेडिट नोट जिसमें टाइम लिमिट है, जो 30th November नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गई. बट स्टिल वी कैन इशू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट, जिसपे जीएसटी नहीं लगता. प्लीज आप अपने बिजनेस में अगर क्रेडिट नोट डालना चाहते हैं, डोंट अप्लाई जीएसटी ऑन द क्रेडिट नोट, क्योंकि क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी कम विद अ टाइम लैग, नवंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट 2 साल 3 साल 4 साल दीजिए ना आप, एंड उसका जीएसटी का कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना. दैट इज मोर एडवाइजेबल. समटाइम हमारे यहां स्ट्रगलिंग किस चीज की होती है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ, दैट्स द रीजन वी कॉम्प्लिकेट. तो ये आपको मैंने चौथा चेंज बताया. पांचवा चेंज, एक टाइम लिमिट होती है टू अवेल द क्रेडिट इन जीएसटी. अब आपके लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं मालूम, बट फॉर योर इंटरेस्ट, राजीव सर, मैं इसलिए पकड़ रहा हूं कि सर अभी 8-10 लोग मेरे सामने जो बैठे हैं, इनने बोला विमल तू सामने आ और जीएसटी के चेंजेस बता. डॉक्टर महेश गुप्ता जी ने बोला जीएसटी के चेंजेस बता. तब तक टाइम तो यूटिलाइज करें हम. तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इजी लेमन लैंग्वेज में वो चेंजेस बताने की. यस सर. आप कहते हो 10 पे 1 फ्री, तो अगर आप उसको एफओसी देते हो तो जीएसटी लायबिलिटी आती है? सर मेरे हिसाब से नहीं आएगी, क्योंकि मैं एफओसी नहीं दे रहा. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय कॉम्बो 10+1. 10+1 क्यों? 1 पे 1 फ्री दिवाली में देते हैं ना. My follow-up question on this is, in the same HSN, there are 2 rates of excise, the GST. मैं 10 पीस बेच रहा हूँ लोअर स्लैब का और फ्री में दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लैब का, फिर क्या होगा? अब गोपाल जी ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, आप सबको ध्यान से सुनना है मेरी बात. गोपाल जी ने कहा मैं एक, मान लो 10 के साथ 1 फ्री देता हूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, 1 के साथ 1 फ्री देता हूं. अब दोनों के 2 डिफरेंट एचएसएन रेट हैं और 2 जीएसटी रेट एप्लीकेबल हैं. दोनों करेंगे सर, दोनों. आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपिनियन, एफओसी ओपिनियन. जब बाहर जाऊंगा चेक मांग लूंगा. सो हम 2 केस बनाते हैं, दोनों के एचएसएन डिफरेंट हैं, दोनों के रेट डिफरेंट है. और एक आइटम गोपाल जी का पहले सॉल्व करते हैं कि एचएसएन सेम है और रेट भी सेम है, लेकिन रेट 2 हैं. चलिए सर, मेरा आंसर आप सबको, आप कभी भी गिफ्ट कॉम्बो बनाए ना, 1 के साथ 1 फ्री, और उसके 2 रेट है. मान लीजिए एक 5% का आइटम है जो आपका प्रिंसिपल आइटम है, जो आपका मेन आइटम है, और गिफ्ट का आइटम है वो 18% की रेट का है. गिफ्ट का आइटम जो आपका नहीं, आपने बाजार से खरीदा, आप लगा के बेच रहे हो. आप कभी भी 18% वाला आइटम, 12% वाला आइटम 5% के साथ क्लब मत कीजिए. दैट इज गोइंग टू बी मिक्स सप्लाई. कल आपके पास डिबेट ये होने लगेगा, यू हैव सप्लाई 2 और मोर सप्लाई अंडर सिंगल प्राइस, क्योंकि एक ही प्राइस पे आप बेच रहे होंगे, and that is going to be taxable at the highest rate of that particular combo.
मिक्स सप्लाई में आ जाएगा और आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। लॉट मेनी क्लाइंट विथ मी एज ऑन डेट, उनके पास प्रॉब्लम यही है। सर एक एग्जांपल देता हूं, एक अगरबत्ती वाला बंदा, चाय वाला बंदा, चाय पत्ती बेचता था 5% की रेट। उसने क्या किया, 18% का गिफ्ट आइटम 5 kg चाय की बैग के साथ देना चालू कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 kg का चाय पत्ती का बैग लीजिए और ये 18% का गिफ्ट इस कॉम्बो प्राइस के साथ, आपको कोई अलग एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देनी है। डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, डिपार्टमेंट बोलता है बिमल इधर आ, ये जो गिफ्ट दिया ना आपने, इस पे क्रेडिट ली है? सर बिल्कुल ली है। क्यों ली है? क्योंकि मेरे कंपोजिट प्राइस का पार्ट है, कॉम्बो का पार्ट है। बोले नहीं नहीं बिमल, ये मिक्स सप्लाई है अब जीएसटी में। एक 5% का आइटम जो प्रिंसिपल सप्लाई है और गिफ्ट का आइटम जो 18% है, अंडर सिंगल प्राइस अगर आपने दी है ना, अब या तो 18% टोटल पे दो, हाँ हाँ, और फिर क्रेडिट लो, या फिर जो क्रेडिट आपने ले रखी है 18 वाले आइटम, गिफ्ट वाले आइटम पे, उसको रिवर्स मारो। सर समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आइटम बाहर से नहीं है, खुद का ही प्रोड्यूस। अब सर मैं आता हूं आपके क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। गोपाल जी ने बोला छोड़ूंगा नहीं बिमल तुझे। गोपाल जी ने कहा ओपिनियन दे रहा हूं तो पूरा पूछ के जाऊंगा। देखिए तो गोपाल जी ने कहा अगर पूछ रहा हूं तो पूरा पूछ के जाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना ही आइटम देता हूं एक के साथ एक, अपना ही आइटम एक के साथ एक। तो कई बार आपने देखा ना, दिवाली पे एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री मिलता है ना, सेम आइटम, सेम एचएसएन रेट, सेम रेट, तो क्या वो फ्री है क्या? इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉम्बो क्रिएटेड, और रेट सेम है, तो मिक्स सप्लाई का डिस्प्यूट खत्म। और वो फ्री में नहीं जा रहा, वो फ्री में नहीं जा रहा। देन उस केस में मान लीजिए 5,000 की शर्ट है और एक 5,000 की शर्ट फ्री, तो 5,000 रुपए पे ही जीएसटी लगेगा। और जो आपने एफओसी दिया वो एफओसी नहीं है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कॉम्पोजिट सप्लाई। आपको क्रेडिट मिलेगी। पर गोपाल जी मैंने आपसे क्या कहा, आपको बड़े स्मार्टली इस स्कीम को बनाना पड़ेगा। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी देखते हैं उनको बैठ के पहले जज करना पड़ेगा, मुझे किसके साथ कैसे क्या फ्री देना है, जिससे कल की डेट में मिक्स सप्लाई का डिस्प्यूट ना हो, और मुझे गिफ्ट, जिसको गिफ्ट कह रहे हैं, उस पर क्रेडिट डिनायल ना हो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप क्या समझते हो सर? आप क्या समझते हो सर? संदीप भाई आप क्या समझते हो? यहां मुझे बोला गया है जीएसटी चेंजेस बता दे बस। ऑन ए लाइटर नोट, ऑन ए लाइटर नोट, हमें एंजॉय करना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट चेंज सर, सर बोल लूं सर? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक वो नहीं आए बोलता रहे। हाँ सर, अशोक सर कुछ कह रहे हैं। आपने कहा एक पे एक फ्री। हाँ सर। दोनों की जीएसटी 18% है। हाँ सर। तो जो फ्री वाला उस पे जीएसटी लगेगी ना? सर नहीं लगेगी ना, वो तो उस प्राइस का पार्ट एंड पार्सल बन गया ना सर। मैंने सर एक एग्जांपल, 18% की रेट है मान लीजिए शर्ट के ऊपर, 5,000 रुपए की एक शर्ट है। दिवाली में मैंने ऑफर किया एक शर्ट के साथ दूसरी शर्ट फ्री, तो अब दोनों शर्टों की प्राइस पकड़े तो 10,000 होती है, लेकिन मैंने दिवाली में ऑफर कर दिया 5,000, तो मेरा जीएसटी कितने पे लगेगा? मेरा दोनों शर्टों पे 5,000 की प्राइसिंग है, तो जीएसटी भी मेरा 5,000 पे ही लगेगा। अब जो फ्री दिया सर वो फ्री नहीं दिया, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कॉम्बो। सो सर क्रेडिट भी मिलेगा और जीएसटी नहीं लगेगा। एक लास्ट पॉइंट करता हूं, फिर मुझसे बोल दिया गया है मुकुल जी भी यहाँ पे अवेलेबल है डायरेक्ट टैक्स के, तो उनको भी थोड़ा ज्ञान देने के लिए बोला जाए। तो मुकुल भाई तैयार हो जाओ आप। मैं एक लास्ट पॉइंट कह रहा हूं और सारी क्रेडिट जाती है डॉक्टर महेश गुप्ता जी को। उन्होंने कहा बिमल कम से कम कुछ बोलना स्टार्ट कर, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ हम एंजॉय तो करें, इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स भी कर दिया। मैंने कहा एंजॉय करते हैं पूरा, ये नहीं लगना चाहिए कि आज हम आए थे और हमने कुछ नहीं सुना। कम से कम घर जाके कल ये तो बोलेंगे हाँ बिमल ने ये 2 पॉइंट नहीं बताए हैं। तो अशोक जी तो यही बोलेंगे रावत इधर आ, दिखा दिया पूरे पैसे देगा। अच्छा सर लास्ट पॉइंट सर, जीएसटी में ना जो रिटर्न सिस्टम, मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी के सामने उस दिन कहा था सर,
आप लोगों ने कितना उस प्रोग्राम को देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम। मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी के सामने कहा था, सर आप एक फेक इनवॉइस और फेक क्रेडिट की बात करते हैं और कहते हैं कि फेक इनवॉइस की वजह से फेक क्रेडिट मार्केट के अंदर है, इसलिए हम डिटरेंट प्रोविजन लेके आ रहे हैं। मैंने उनको उस दिन कहा था, सर आप गलत कह रहे हैं। अगर आपने ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता ना, तो फेक इनवॉइस का इश्यू होता नहीं आज की डेट में कंट्री में। वो क्या है मैं आपको बताता हूं, पहले आप समझिए उन्होंने क्या नहीं किया जिसकी वजह से वही जिम्मेदार है। जब जीएसटी आया था तो उन्होंने कहा था ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न सिस्टम होगा। मैं सप्लायर हूं, मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा, जो आपके 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, मेरे बायर के 2A में। आप अपना जीएसटीआर 2 भरेंगे और अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐड मॉडिफाई डिलीट की है तो वो मेरे 1A में आ जाएगा। मुझे दिखेगा कि आपने कुछ चेंज किया है, जिसको आइदर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। तब आप जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे। अब मान लीजिए अगर इन्हें ये ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया होता तो मैं जीएसटीआर 1 भरता और वो आपके 2A में आ जाता। 2A आया ही नहीं सर, टिल जनवरी 2019, 2019 जनवरी तक 2A आया ही नहीं, सिस्टम ही नहीं आया। अब आप बताइए मैं क्या मैं वो टैक्स इवेडर हूं मान लीजिए, मुझे लगा कौन पकड़ेगा मुझे। मैंने इनवॉइस फाड़े हैं, काटे हैं, जीएसटीआर 1 चढ़ाया और बस आपको दे दिया, ना उसका टैक्स पेमेंट किया ना कुछ किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि 2A है ही नहीं है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा? तो ये जो मशरूम काइंड ऑफ टैक्स इवेडर है, इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान इनका है। हम बोलते हैं ना, जो राजस्थान में होता है सर, जो पतिदेव होते हैं वो एजी होते हैं। हमारे ये एजी इन्हीं लोगों ने किया। अगर इन्हें 2A इंप्लीमेंट कर दिया होता तो फेक इनवॉइस वाले आज की डेट में नहीं होते। मैंने कहा भी उस दिन उनसे। फिर मैं एक दूसरी बात बताऊं, जब इन्हें ये बात कही तो उसके बाद इन्हें कहा कि नहीं बिमल, हम 2-वे कम्युनिकेशन रखेंगे सप्लायर एंड रिसिपिएंट का। सेक्शन 43A इंप्लीमेंट कर दिया। आपको 43A से कोई लेना देना नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, ये खुद श्योर नहीं है कि कौन सा रिटर्न सिस्टम डालना चाहते हैं। 43A 2018 में सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट में आया, पर आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। अब ओमिट कर दिया उसको, बोला नहीं, अब 2-वे कम्युनिकेशन खत्म। अब जो आपकी क्रेडिट है वो मेरे ऊपर है, सप्लायर के ऊपर है सर। अब आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो पहले सप्लायर को देखिए, सप्लायर कौन है, उसे जीएसटी लॉ मालूम है नहीं मालूम है, प्रॉपरली रिटर्न भर रहा है नहीं भर रहा, टाइमली भर रहा है नहीं भर रहा, तभी आपको क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगी सर, आपको नहीं मिलेगी सर। 6 महीने बाद सोचना, 6 महीने बाद मिलेगी और वो टाइम लिमिट निकल गई तो ओहो। अब संदीप जी ने जो पॉइंट पकड़ा उसको एक बार समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए मार्च महीना था, मार्च का ले लेते हैं हम, 2021 मार्च ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब मार्च का उसने जीएसटीआर 1 मैंने नहीं भरा तो आपके 2B में नहीं आएगा। अब आपको क्रेडिट लेनी है, 2B में दिख नहीं रहा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो कब तक भरूं मैं? मुझे टाइम दे दिया नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी मार्च 21 की बात कर रहा हूं, तो नवंबर 21 तक मैंने जीएसटीआर 1 भर दिया हो, आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट। अगर वही दिसंबर में मैंने भरा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपकी क्रेडिट अब किस पे डिपेंडेंट है? यानी सप्लायर पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूरा लॉ का पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। अब स्मॉल सप्लायर, वो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, सॉरी टू से दैट, कि जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे जब खड़ा होकर मैं बोल रहा होता हूं ना, दे ऑल्सो स्ट्रगल की प्रोविजन क्या है। नहीं संजय जी कुछ पूछना चाहिए? नहीं विमल जी, मैं ये कह रहा था कि जो बैंक्स जो सर्विस चार्ज वगैरह लेते हैं उसके ऊपर दे चार्ज जीएसटी, बट दी इनवॉइस नहीं आता, काइंड ऑफ इनवॉइस या वो तो अपनी स्लिप्स दे देते हैं, कुछ नहीं which is आता, not a taxable, कुछ नहीं आता। so we are losing, I mean we gone through that, yes, and correct. we have seen that we are losing lot of credit, which, and secondly उसमें बैंक वालों ने क्या किया, वो इंस्टेड ऑफ कोई B2B है वो B2C में डाल देते हैं, तो वो भी चक्कर है कुछ।
कि वो भी नहीं मिल रहा, जो वो कह रहे हैं हमने तो भर दिया अपने GSTR 1 में और B2C में डाल दिया, जो हमें मिलेगा नहीं B2B की वजह से। संजय जी ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, आप लोग सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने इसका में। चेक भी यही देंगे गोपाल जी। अच्छा, गोपाल जी चेक देंगे? हाँ। तो आंसर देना है नहीं देना? नहीं नहीं, बिल्कुल आंसर देता हूं सर, आंसर देता हूं। संजय जी आंसर सुनो। सप्लायर क्या करता है, मान लीजिए मुझे आपका GST नंबर डालना था, गलती से मैंने पड़ोसी का GST नंबर डाल दिया, आपके 2B में नहीं आएगा, आपको क्रेडिट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। B2B ट्रांजैक्शन थी, B2C दिखा दी, आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैंने 3B में टैक्स पे कर दिया पर GSTR 1 नहीं भरा, क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी अब उन्होंने कह दिया बिमल अब सब खत्म, अब तो तुझे सप्लायर, नो योर सप्लायर। बैंकिंग सेक्टर में है ना नो योर कस्टमर, इन्हें GST में बोल दिया नो योर सप्लायर, आप उसी बिमल से काम कीजिए जो GST लॉ जानता है। अब आप सोचिए वो GST लॉ जानेगा या काम करेगा बेचारा? बट दैट इज व्हाट द आयरनी एंड प्रोविजन एज ऑन डेट। बट अब सर मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं जो GST लॉ में अच्छी भी हैं। You want to say something? Okay, all right. Give me 2 minutes. Yeah. नहीं, मुकुल भाई को भी अब एंथू आ गया। अच्छी बात। मुकुल भाई ने कहा चलो 5 मिनट मैं भी बोल लूंगा। मुकुल भाई डोंट वरी, जस्ट 2 मिनट और दे दो। माइक कुछ होता है ना, छोड़ने दो 5 मिनट ही, फिर जितना संजय भाई देखो, संजय सर देखो, जब माइक मिल जाता है ना और डॉक्टर गुप्ता ने कहा बिमल बोल, तो वो मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है एकदम, फिर बोले अब तो बोल ही दो। सर मैंने तो कोशिश की इस ऑड टाइम को आपकी लैंग्वेज में आपके हिसाब से प्रेजेंट कर पाऊं, क्योंकि आपके लेवल पे मैं टेक्निकली अगर प्रेजेंट करता तो मजा नहीं आता। मैंने आपको आप ही की लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। राजीव सर, लास्ट पॉइंट, नाउ इट इज वन वे ट्रैफिक, यू नीड टू नो योर सप्लायर। When you need to know your supplier, then what are the important changes they have drawn in this Union Budget 2022? सर अगर आपने पुराना GSTR 1 नहीं भरा, संदीप भाई आप ही के लिए है कि मार्च का क्या नवंबर में भर सकता हूं। उन्होंने कहा बिमल अगर तूने पुराना नहीं भरा ना तो करंट पीरियड का GSTR 1 नहीं भर सकता अब तू। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GSTR 1 नहीं भरा तूने तो 3B भी नहीं भर पाएगा। अच्छा प्रोविजन है, क्योंकि आपकी क्रेडिट 1 पे डिपेंडेंट है, 2B में आएगी। तो ये कंपलसरी कर दिया सप्लायर के लिए कि तू 1 भर फिर 3B भर, और दोनों में डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 में 1 लाख की लाइबिलिटी दिखाई है तो 3B में भी लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। सो दीज आर द गुड प्रोविजन। नेवरदलेस यू हैव गिवन मी दिस टाइम। थैंक यू टू डॉक्टर महेश गुप्ता जी। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ले लूं सर? Thank you, Deepak ji. Thank you very much. One question for both of you together. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये जो TCS और TDS है, एक GST है और एक इनकम टैक्स है, बट